ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ। ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀਐਸਪੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये आदेश हमने दिए हैं और इसमें संलिप्त जितने भी और लोग हैं इस गिरोह के, उनको भी कानून के दायरे में तुरंत लाया जाएगा। सर, माइनिंग को लेकर जिस तरीके से उनके स्टाफ के लोग भी थे तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये आदेश हमने दिए हैं और इसमें संलिप्त जितने भी और लोग हैं इस गिरोह के, उनको भी कानून के दायरे में तुरंत लाया जाएगा। सर, माइनिंग को लेकर जिस तरीके से उनके स्टाफ के लोग भी थे तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी
ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਧਰਮਵੀਰ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ बाकियां दी हले तलाश चल रही है? देखिए, अभी तक सिर्फ एक ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम इकरार बताया गया है, और इस इकरार को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। सुबह जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। इकरार के बारे में कहा जा रहा है कि वही चालक है जिसने की डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचल कर मारा है एक तरह से अपने डंपर से। ये उसी चालक बताया गया है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों को सुबह डिटेन भी किया था, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, और उसके बाद ही ये खुलासा हो पाया था कि इकरार नाम का जो युवक है वो इस डंपर को चला रहा था जब ये घटना घटी, इसलिए अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी भी जो है जांच चल रही है कि उसके साथ कौन कौन लोग और थे, पहाड़ पर उस वक्त कौन कौन लोग खनन को एक तरह से कर रहे थे, कौन लोग इसको अंजाम दे रहे थे, उन लोगों के बारे में भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। अच्छा धर्मवीर, जैसे ये खबर है कि मुठभेड़ हुई, तो क्या उनके पास भी कोई हथियार थे? उन्होंने पुलिस पे फायर किया? देखिए, अभी तक जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही है कि वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था लगातार, इसलिए पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की है और उसी दौरान उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन ये एक तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या उसके पास हथियार थे या नहीं थे, क्योंकि जो बात हुई है एसपी से और डीजीपी से, वो इस वक्त जहां पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह का जो शव रखा गया है वहां पर मौजूद है। वहीं पर उन्होंने बुलाया है मीडिया को, कुछ देर में वो शायद ऑफिशियली बताएंगे कि एनकाउंटर कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किन हालातों में एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ी, तो वो कुछ देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये तय है कि एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, इकरार नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया धर्मवीर फिलहाल इस जानकारी दे लई। तां एक व्यक्ति नूं, एक मुलजम नूं गिरफ्तार किया पुलिस ने। इकरार ये उही मुलजम दस्सिया जा रहा है जो डंपर चालक सी, जो उस मौके ते डंपर चला रहा सी, जिसने डीएसपी सुरेंद्र सिंह ते डंपर चढ़ाया और उन्हां दी मौके ते मौत हो गई। सो कातिल माफिया जिहड़ा है उस ते एक्शन पुलिस ने शुरू कर दिता है। सो डीएसपी का कतल जिहड़ा है ये किया गया क्योंकि नजायज माइनिंग रोकण दे लई डीएसपी उत्थे गए सी। माइनिंग माफिया दे नाल सामना हुंदा है और डीएसपी ते डंपर चढ़ा दिता जाता है। मौके ते ही डीएसपी की मौत हो जाती है। 5 तस्वीरों के जरिए असी अज का यह पूरा वाकया दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि किस तरीके नाल ये वाकया होया। पहली तस्वीर दे विच ओह जगह है जिथे नजायज माइनिंग हुंदी सी, थोड़ा हिली एरिया है जिथे ये माइनिंग की जा रही सी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई उत्थे तैनात सी और उन्होंने अपनी टीम के नाल उत्थे रेड की। माइनिंग माफिया के नाल उन्हां दा आमना सामना होया और इस दौरान डीएसपी ते डंपर चढ़ा दिता गया और डीएसपी की मौके ते मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जिहड़े कुरुक्षेत्र तो बिलोंग करते सी, उन्हां दी दर्दनाक मौत हुई है माइनिंग माफिया दे नाल इस कशमकश दे विच, और अपनी ड्यूटी निभा रहे सी। उस नजायज माइनिंग नूं रोकण जा रहे सी जो उत्थे कीती जा रही सी, उसनूं रोकण दी कोशिश कीती, अपनी टीम नाल पहुंचे, पर माइनिंग माफिया इस कदर बेखौफ सी कि उन्होंने डीएसपी ते ही डंपर चढ़ा के उन्होंने मौत के घाट उतार दिता। साडे सहयोगी धर्मवीर वालों जायजा लिया गया है स्थिति का, वो भी तुहानूं दिखाउंदे हां। इस वक्त मैं मौजूद हूं नूह इलाके के उसी जगह पर जहां एक डीएसपी को आज अवैध खनन माफियाओं ने कुचल कर मार दिया। ये आप मेरे ठीक पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये नूह जिले के तावड़ू इलाके की तस्वीरें हैं जहां इस पूरे पहाड़ को काट करके अवैध खनन की गई थी। और इसी की शिकायत जो है लगातार पिछले कई दिनों से लगातार नूह पुलिस को मिल रही थी, जिसके चलते डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो है आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे, छापेमारी करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें जो जानकारी मिली थी वो यही थी कि यहाँ पर बड़े स्तर के ऊपर अवैध खनन जो है वो की जा रही है। यहाँ पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपने 2 साथियों के साथ पहुंचे थे और वो जब इस रास्ते पर मौजूद थे तभी इस रास्ते से जो एक ट्रक के अंदर अवैध तरीके से ये जो पत्थर है ये लाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही
पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसके बाद उसने कोशिश की पुलिस वालों के ऊपर इस पत्थर को खाली करने की, क्योंकि उसने अपने डंपर का पीछे का जो हिस्सा है, डाला जिसे बोलते हैं, उसको खोल दिया ताकि ये पत्थर जो है ये पुलिस वालों के ऊपर गिर जाएं। लेकिन ठीक इसी जगह पर अगर हम बात करें तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह मौजूद थे, जिन्होंने की इस डंपर को रोकने की कोशिश की तो डंपर चालक ने उनके ऊपर ही एक तरह से डंपर को चढ़ा दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये जो खून आप देख रहे हैं, जो धब्बे देख रहे हैं खून के, ये डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ही खून के धब्बे हैं।